Unacademy. Let's crack it. Please introduce yourself, Amritji. Madam, my name is Amrut Chauhan. My native place is Taluka Chopra, district Jalgaon, from Maharashtra. I have done my education up to junior college from Jalgaon itself. Thereafter, I have completed the 5 years BLLB course from Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. And recently, I have done my LLM. In which subject? Madam, as per the syllabus of the university, we are required to do research on a particular topic, and that research itself is our specialization. Okay, it was 1 year or 2 year? 2 year it 2 was. year, madam. 2 year, madam. So for the whole 2 year, you were busy with the research work, or were some subjects were also there? Madam, some subjects were also there. Like? Madam, comparative criminal procedure, law and social transformation, juvenile delinquency, criminology. Yes, madam. Okay. Amritji, you belong to Maharashtra, right? Yes, madam. Can you say something about worldly art? Yes, madam. Madam, Varli art is one of the ancient art in Maharashtra, and many historical places have Varli art in those places. Yes, What is this? Means it is on some metal work, or what it is? It's woodwork or metal work? madam, I think Varli painting is done on wood, madam. Wood. Are you Yes, sure madam. about this? Madam, I am not sure, but I am guessing that it may be on wood. Okay, Amritji. ये बताइए, voluntary causing hurt is compoundable offense? And Yes, if it is madam. a voluntary causing grievous hurt, it can be compounded? I'm sorry, madam, but I will go through it. ये बताइए, SRA में कुछ changes आए थे 2018 में. Can you name the main Yes, madam. changes? Please. Yes, madam. Ma'am, the main amendment deals with the infrastructural projects, as well as the discretionary power of the courts in respect of the specific performance are now made. Now there is no discretion to the court while granting the relief. Yes, ma'am. Mandatory now. Any Yes, other ma'am. change? So, madam, first schedule is inserted in the act. Yes. So this schedule contains what? Madam, schedule provides the list of the infrastructural projects. Okay. Is there any mention of special courts, Yes, madam. assistance of expert, Yes, madam. Yes. substituted services? Yes, madam. Substituted performance. Yes, madam. Okay. अब ये बताइए कि as a judge, what privilege you will enjoy as per Indian Evidence Act? Madam, one of the privilege is provided under section 121, and I cannot be called in the court for the examination except for the purpose of or on the order of the superior court. Okay. Who decides language of courts which are below high courts? Madam, the language is provided under the Indian Constitution. For the courts below the high court? Sorry, madam. Madam, below high court, it will be decided by the state government. Okay. ये बताइए कि अगर दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, तो क्या वो स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं? Yes, madam. Are you sure about this? Madam, as far as I recall,
the dispute between two states will be within the original jurisdiction of the Honorable Supreme Court of India. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर किसी विटनेस को बुलाया गया है कि आप Yes. डॉक्यूमेंट लेके आइए, उसमें ये मेंशन नहीं है कि आप ही लेके आएंगे, आप कैसे भेज रहे हैं, किसी सर्वेंट या किसी पियोन के द्वारा भेज रहे हैं, पर डॉक्यूमेंट मंगवाया गया कोर्ट में और वो डॉक्यूमेंट उस इंसान ने भेज दिया, तो जी. क्या ये कंप्लायंस हो गया या उसको खुद अपीयर होके उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा? मैडम, as per my understanding, उसे हम compliance हो गया ऐसा कह सकते हैं मैडम. ठीक है. कुछ प्रोविजन वगैरह कुछ याद नहीं है इसके बारे में कि कहाँ ऐसा लिखा गया है? मैडम, आई एम सॉरी मैडम, बट आई विल गो थ्रू इट. ओके. एक वुमेन है, प्रेग्नेंट है, वो अबॉर्शन कराना चाहती है, तो जी. कितने मंथ तक करा सकती है और वो लीगली वैलिड कहलाएगा? मैडम, वो पीरियड 24 वीक्स तक दिया गया है. सबके लिए? 24 वीक्स मैंने पढ़ा है, पर एक बार मैं फिर एक बार चेक कर लूंगा. इसको चेक करना जी मैम. कि जैसे कुछ अगर ऑफेंस से रिलेटेड प्रेगनेंसी है तो क्या उसमें भी यही वैलिड रहेगा 24 मंथ्स या 20 मंथ्स या जो भी रहेगा? और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है तो उसके लिए कितने मंथ्स है? क्या दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? प्लीज गो थ्रू दिस. यस मैडम. ठीक है. अच्छा, एक दो औरतों में झगड़ा चल रहा है, ठीक है. दे जी मैम. यूज्ड filthy language against each other and they जी. approached court. Yes. One woman said that she used a very abusive language toward me, so I want to file a case for 509 FIR लॉन्च कर आके अपने जैसे भी उसने किया, जी मैम. 509 में किया, तो क्या करेगी कोर्ट? उसको लाइबल ठहराएगी 509 में? Madam, as per my understanding, the offense under 509 is against woman. Yes, madam. So other party should be a man. So this is not gender neutral? Madam, I will have to go through the provision. Yes, ma'am. अच्छा, चलो ये बता दीजिए कि अगर फिल्थी लैंग्वेज यूज करी है, चाहे चलो आदमी ने यूज करी है, आप ये जी. यहाँ पे दो वुमेन ना लेकर के एक आदमी ने फिल्थी लैंग्वेज यूज करी है एक जी. वुमेन के अगेंस्ट, तो क्या वो 509 में आएगा? Madam, it should be, the content should be something which outrages the modesty. Yes, madam. तो क्या फिल्थी लैंग्वेज से मॉडेस्टी इंसल्ट हो रही है उसकी? No, madam. तो 509 में आएगा? No, madam. ठीक है. अच्छा, ये बताइए 145 CRPC की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जी. उस दौरान एक पार्टी एक्सपायर हो जाती है, ही इज डेड नाउ. काफी सारे उसके फैमिली मेंबर्स हैं जो कहते हैं हम LR हैं, जिसमें उसके कजन भी शामिल हैं, तो कोर्ट क्या करेगी उस प्रोसीडिंग के दौरान? उसको डिसाइड करेगी कि LR कौन है या क्या करेगी? Madam, under criminal case? या 145 अंडर CRPC I said. जी. Madam, I think the criminal liability will not be posted on the legal representatives, but in case of appeal, they can make application to the court that they want to go through the appeal. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट ये बताइए कि 354 IPC और 509 आपके पास ये सेक्शंस हैं जो कि मॉडेस्टी से डील करते हैं वुमेन की, जी. और आपके पास पॉश एक्ट है. दोनों में क्या डिफरेंस है? जब IPC में रेमेडी है अपने पास कि ऐसा कहने पे ये रेमेडी मिलेगी, तो पॉश को इनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैडम, पॉश इनेक्ट करने का इंटेंशन यही था मैडम कि वुमेन को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है मैडम. नहीं, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन तो जैसे घर में है तो DV एक्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, ऑफेंस ही कर दिया, मर्डर कर दिया, थेफ्ट हो गया, ये सब तो IPC में सब कुछ है, वो सब में तो जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है, तो एक वुमेन उसमें भी अप्रोच कर जी सकती है कि ये ऑफेंस IPC में हो गया है.
और अगर उसकी मॉडेस्टी से रिलेटेड है तो 354 में जाएगी। अब तो ABCD भी आ गए 354 के, स्टॉकिंग है, वॉयलिज्म है, इन सब जी। में, तो अलग से पॉश एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? मैडम जो विशाखा गाइडलाइंस दिए गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के बाद में वो एक्ट नहीं, लाया गया विशाखा मैडम। गाइडलाइंस आई है, किसी केस के ऊपर आई है, ठीक है, जो एक राजस्थान का जी मैडम। केस था उसके ऊपर आई थी, तो वो उस केस को डिसाइड कर लेते जी और चीजें कंटिन्यू रह सकती थी IPC के अकॉर्डिंग। एक्ट क्यों लाए? मैडम, आई थिंक आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो प्रोवाइड किया है कि स्पेशल इनैक्टमेंट्स हम कर सकते हैं, उसी के द्वारा वो उसका you're not ओरिजिन होगा। getting my question. The reason behind, I said, ओके। that's you are to providing the base कि किस बेस पे उन्होंने कर दिया, Yes, किस प्रोविजन को यूज yes. करते हुए गवर्नमेंट ने किया, लेकिन क्यों किया ये आप बताइए। मैडम, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रहा है, तो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑफेंस उसको स्पेशली प्रोवाइड तो मीन किया अगर गया है। कोई वर्क प्लेस पे कोई ऑफेंस है तो वो 354 यूज ही नहीं कर सकते? मैडम, स्पेशल इनैक्टमेंट है, उसकी वजह से 354 नहीं लगना चाहिए, ऐसा मुझे एक लगता वर्किंग वुमेन कैन यूज 354 वेरी वेल, वो यूज कर सकती है, वो 509, उसको बार कैसे कर सकते हैं आप? है। मैडम, आई विल गो थ्रू इट। यस मैडम। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या वुमेन मेंबर्स भी थी? आई एम सॉरी मैडम, बट आई विल गो थ्रू। अच्छा, व्हाट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप किसे कहेंगे? मैडम, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मीन्स a bench which is constituted to resolve any issue with relating to interpretation of the constitution. How many members are required to make मैडम, this minimum, number? yes मैडम, five judges should be there. अच्छा, ये व्हाट इज फुल बेंच? आई एम सॉरी मैडम। नो आइडिया। अच्छा, व्हाट इज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट? Madam, pro forma defendant means the party who is not or against whom actually no relief is claimed, but it can be made as a party which is a proper party. Can you repeat it, please? Yes, madam. Madam, pro forma defendant means when a person is made as a defendant without any relief is being claimed against him, particularly from him. Yes. Okay. ये बताइए कि एक माइनर दूसरे माइनर का किडनैप कर सकता है? I am sorry, madam. अच्छा, और बेगिंग कहीं पे डिफाइंड है IPC में? Yes, madam. क्या कहती है डेफिनेशन कि व्हाट इज बेगिंग? मैडम, एक्चुअल डेफिनेशन तो याद नहीं, पर पढ़ा है मैडम। आई एम सॉरी मैडम। अच्छा, एक बच्चा अपने साथ में अपने कुत्ते को लेकर घूम रहा है, कुत्ते के ऊपर कुछ पैर में घाव वगैरह है, वो उसको दिखा करके लोगों से भीख मांग रहा है, तो क्या इसको भी बेगिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, या वो घाव उस बच्चे के ऊपर होना चाहिए तभी वो बेगिंग में इंक्लूड होगा? मैडम, आई विल हैव टू गो थ्रू प्रोविजन। सॉरी मैडम। मीनाक्षी मैम? अमृत जी, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है? यस मैडम। मैडम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यस मैडम। तो पीछे जो शेड्यूल दी है उसमें कौन कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसको बोलेंगे प्रोजेक्ट, कौन कौन सी? यस मैडम, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, देन सेकंड इज एनर्जी, then third is communications, then fourth is I am not able to recall now. अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? Madam, the object is to provide the particular relief and not the general relief in the form of damages. पर्टिकुलर रिलीफ जैसे किसको कहेंगे आप? पर्टिकुलर रिलीफ
Suppose, madam, in case of specific performance of the contract, we are going to compel that party to perform his part of contract specifically. Yes, madam. मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मतलब ये हुआ, जो चीज मेरी है मुझे वही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनसेशन तो मैं 70, 74, 75 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ले सकती हूँ। जी मैडम। मैडम, पर्पस हम ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर रिलीफ जिसे हम पैसों में काउंट नहीं कर सकते, उस समय उस स्पेसिफिक थिंग को अपन क्लेम कर सकते हैं मैडम। आपका एलएलबी कब कंप्लीट हुआ था? मैडम 2020 में। तो आप कभी कोर्ट गए? यस मैडम। एज एन प्रैक्टिसिंग लॉयर? मैडम, आई हैव डन जूनियरशिप। कितने टाइम तक मतलब कंटिन्यू गए थे या मतलब कभी कोर्ट विजिट या मैडम जाता रहता हूँ, कोर्ट में जाता रहता हूँ। आज तक कोई आपने कोई केस लड़ा है एज मैडम, मैडम रिमांड प्रोसीजर हैंडल किए और 156(3) सीआरपीसी के एप्लीकेशंस भी उनमें 1-2 बार मैडम आर्गुमेंट्स किए हैं। तो क्या मैजिस्ट्रेट एम्पावर है क्या कि किसी भी आर्गुमेंट को रोक सकता है बीच में? आई एम सॉरी मैडम, बट आई विल मेक इट कंफर्म। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द प्रोविजन। आपने हाउस अरेस्ट के बारे में सुना है? जी मैडम। कौन से केस के थ्रू आया है हाउस अरेस्ट वाला प्रोविजन? आई एम सॉरी मैडम। मैडम, आई विल ट्राई। इट वाज इन खरक सिंह केस मैडम। यस। अच्छा, कस्टम और यूजेस में क्या डिफरेंस है? रूढ़ी और प्रथा में क्या डिफरेंस? आई एम सॉरी मैडम। आपकी कोई हॉबीज आप परस्यू करते हैं? यस मैडम। क्या हॉबीज है? मैडम, डूइंग योगा। तो योगा, क्या इंडिया में योगा का कोई टूरिज्म है क्या? टूरिज्म के पर्पस से योगा को देख सकते हैं क्या इंडिया? मैडम, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, सॉरी मैडम। जैसे क्या जो भी फॉरेनर आउटसाइडर्स हैं क्या एज ए योगा देखने के लिए टूरिज्म के पर्पस से आ सकते हैं? जैसे हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, जैसे राजस्थान है, एमपी है, बहुत सी जगह है, महाराष्ट्र है, क्या योगा को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है? मैडम, हरिद्वार में हरिद्वार ऐसी प्लेस है, हम उसे कह सकते हैं मैडम। हरिद्वार में कहाँ पे? पतंजलि योगपीठ जिसे कहा जाता है। यस। तो मतलब योग गुरु रामदेव बाबा को ही मानते हैं आप? नहीं, पर्टिकुलर वैसा नहीं मैडम, बट टूरिस्ट के हिसाब से वो एक प्लेस है। जी मैडम। आपने ये बताओ मेरे को आप कि आईपीसी के फादर किसको बोलते हैं? मैडम, लॉर्ड मैक्यूले। कौन सा लॉ कमीशन था जिसने ड्राफ्ट करा था आईपीसी? मैडम, आई थिंक इट वाज फर्स्ट और सेकंड लॉ कमीशन, बट आई एम नॉट श्योर मैडम। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होती है? Madam, substituted performance means when a party to the contract fails to perform his part of promise, then the party who is going to suffer due to such breach can get the performance through his own agency or through third party, and expenses required for such performance can be recovered from the party who has committed the breach. क्या जो सेक्शन 6 की रेमेडी है, क्या ट्रेसपासर को भी मिल सकती है इस बारे में? यस मैडम। मैडम, सपोज अगर किसी व्यक्ति को पोजीशन से बाहर निकालना है तो लीगल रेमेडी, लॉफुल रेमेडी यूज करके ही निकालना चाहिए। अगर वो ट्रेसपासर भी हुआ, ट्रेसपासर को एक्चुअल जो ओनर है उसके अगेंस्ट भी सेक्शन 6 की रेमेडी मिल जाएगी? नो मैडम, अगर ट्रेसपासर पोजीशन में तो उसको निकालने के लिए सेक्शन 6 के अंडर जाना पड़ेगा। मतलब ट्रेसपासर एक एक्चुअल जो ओनर है उसके अगेंस्ट भी सेक्शन 6 की रेमेडी को रिकवर कर सकता है, एज यू नो, यू आर सेइंग।
Madam, I will have to go through the provision. Yes, madam. You are not sure. Yes, madam. I am not sure. अच्छा, टेम्परेरी इंजेक्शन और परपेचुअल इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है? Madam, temporary injunction is governed by Civil Procedure Code, and permanent injunction is governed by the Specific Relief Act. And temporary injunction is of temporary nature, and permanent injunction is of permanent nature. Also, temporary injunction is granted through the order, but perpetual injunction is granted at the conclusion of the suit. Suit or merits of the suit? Only suit or Merits of the suit. merit? अच्छा, Merits, yes, टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए कौन से ग्राउंड है जो कोर्ट देखता है ग्रांट करने से पहले? Madam, first of all, there should be a prima facie case. Thereafter, balance of convenience is required to be seen. And third is irreparable loss is required to be seen. क्या होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस? Madam, balance of convenience means we have to see that whether granting or refusing the injunction, whether it will be convenient to either party or inconvenience will cause to either party. We have to judge that particular thing. अच्छा, इन सिविल केसेस मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितना टाइम का होता है? Madam, for 3 months. 3 months. Yes, madam. और अगर अरेस्ट बिफोर जजमेंट है उसमें तो 6 मंथ भी दिया हुआ है, तो कौन सा फिर ओवरराइड करेगा? 3 मंथ्स और 6 मंथ्स? ऑर्डर 38 में एक जगह है जहाँ पे 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है सिविल। मैडम स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइड किया है तो 6 मंथ्स रहेगा मैडम उस केस में, पर एज ए जनरली 90 डेज मैंने देखा है मैडम, मैंने पढ़ा है। 90 डेज और 3 मंथ्स? सॉरी मैडम 3 मंथ्स, सॉरी 3 मंथ्स मैडम। अच्छा, एलार्म्स को रिकॉर्ड्स पे लाने के लिए कितना लिमिटेशन पीरियड है? मैडम 90 डेज। और अगर एक्स पार्टे कोई डिक्री है उसको सेट असाइड करवानी है तो? मैडम 30 डेज। 30 डेज। और yes, कोई अवार्ड को सेट असाइड करवाना पंचायत को तो? आई एम सॉरी मैडम बट आई विल गो थ्रू इट। वेट करो, आपको फीडबैक। जी मैडम। हाँ जी अमृत जी। यस मैडम। बताइए, आप पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं। मैडम ट्राई किया है मैडम, बट आप बताइए मैडम प्लीज। अच्छा, कब आपका इंटरव्यू? मैडम 12 जनवरी। इट्स अप्रोचिंग, हार्डली यस मैडम। 5 to 6 days। यस मैडम। ओके, ये देखिए आपके पास टाइम बचा है, मैक्सिमम लगा दीजिए अपने लॉ को इम्प्रूव करने। जी मैडम। ठीक है, अगर आप पूरा डायरेक्ट पढ़ तो नहीं पढ़ सकते कोई भी इस जी, टाइम में, आप इंडेक्स के गो थ्रू हो जाइए, आपको काफी जी। चीजें प्रोविजन बेस याद हो जाएगी। ठीक, जी जैसे कुछ आंसर्स मैंने आपसे पूछे थे, यू वर नॉट क्लियर ऑन दोस, लाइक बेगिंग। जी मैडम। अगर आपसे मतलब वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा वहां पे कि आप वर्ड टू जी। वर्ड बताइए जो डायरेक्ट में है, लेकिन आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे, बहुत अच्छा मौका था आपके पास में। जी मैडम। देखिए, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, उनमें कैंडिडेट गलती कर देता है, लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जो आपने जी। प्री में भी पढ़े, मेंस में पढ़े, एंड दिस इज अ थर्ड टाइम यू आर गोइंग थ्रू दैट। तो ये वाली जी। चीजें तो मतलब पढ़ के जाना कि छोटे छोटे जैसे थेफ्ट के कंटेंट क्या जी। है, और इस तरह से बेगिंग का क्या आ गया, किडनैपिंग में क्या क्या आता है, हर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, डिफेमेशन में क्या क्या शामिल है। जी। ये वो पॉइंटर्स है, मतलब पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस है, इनमें आप मैक्सिमम मतलब नंबर ला सकते हैं, एक तरह से यूं कह सकते जी। हैं। एक वाटर जी डिस्प्यूट मैडम। वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, उसको आप देखना जी। चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जी। लिखा हुआ, बहुत अच्छे से लिखा हुआ। ठीक है, एक ये था। जी मैडम। देन आई आस्क्ड यू वाज 145 एलआर वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सीआरपीसी का, जी। वो भी आप देखना। जी। मतलब आपकी जो आपको जी इंटरव्यू मैडम। की क्लिप मिल जाएगी, पूरा आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा, तो आप उसमें देखना कि आपके जी। कौन कौन से आंसर्स गलत हुए। आई कैन टेल यू ऑल द आंसर्स एट दिस वेरी हाँ। मोमेंट, लेकिन बेटर दैट यू गो थ्रू योरसेल्फ ओके। सो दैट यू कैन
सी अदर प्रोविजंस नियर बाय ऑल्सो, आप बाकियों को भी देख पाएंगे अगर आपको ढूंढेंगे। जी आपके जो जो क्वेश्चंस हमने बोले हैं उनमें जैसे 145 वाला था, वाटर डिस्प्यूट वाला था, देन आई आस्क्ड यू द वर्ल्डली आर्ट आल्सो, ठीक है। वर्ल्डली आर्ट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट्स जी वेरी मैडम इजी क्वेश्चन। वर्ल्डली आर्ट, महेश्वरी, अब ये सब जैसे ओके आपके आसपास के हैं, वर्ल्डली तो चलो महाराष्ट्र का है, ठीक है, जैसे ये जी हो मैडम गया। जी हाँ, योर पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो, ये मैं सोचना कि आप में सिर्फ हम डेफिशिएंसीज बता रहे हैं, आपकी पॉजिटिव पॉइंट ये है जी कि आप रेडिली एक्सेप्ट करते हो कि आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दिस इज वेरी गुड थिंग, यस कीप इट अप। क्योंकि वही हमें हर कैंडिडेट से कहना पड़ता है, हर कैंडिडेट को सब कुछ नहीं आता, नॉट ओनली कैंडिडेट, इवन द पैनल बोर्ड जी मेंबर जो भी हैं, इनको भी सब कुछ नहीं आता है। तो ऐसा कभी भी ना एक जी कैंडिडेट को मैडम ये नहीं सोचना चाहिए कि आई लैक नॉलेज, नो इट इज नॉट सो, इट इज नेवर सो, ठीक है। यस एवर मैडम लर्निंग यस मैडम प्रोसेस, लॉ इज एवर लर्निंग प्रोसेस, इवन जैसे यस मेडिकल मैडम है वैसे ही लॉ है, ये यस मैडम एवर लर्निंग चलता रहता है। तो आप जी अभी मैडम टाइम है, आप प्लीज फटाफट फटाफट ब्रश अप करिए, आपके जो नोट्स होंगे मेंस के उनके थ्रू आप जी देखिए, और जो आज के क्वेश्चंस आपने जैसे जी मैडम वॉलंटरी हर्ट कॉज करी है तो कंपाउंडेबल है कि नहीं है, चलो ये कंपाउंडेबल है ना। है और मैडम ग्रीवियस हर्ट वाला, यस मैडम मैडम उसका सीरियस नेचर देख के मुझे थोड़ा मैं उसको कंफ्यूज पढ़ना, हो गया उसके कि नीचे है लिखा या नहीं हुआ बट है, शेड्यूल जो नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस होता जी है हर मैडम सेक्शन के नीचे, उसको आप देखना, वो भी जी कंपाउंडेबल है, जी मैडम ठीक है। इन सबको जी जैसे वरी क्या है, छोटी छोटी हर्ट मैंने इसलिए चूज किया, नहीं तो हाँ काफी हर सेक्शन के नीचे आईपीसी में लिखा हुआ है कि ये कंपाउंडेबल है नहीं है, बेलेबल है नहीं, लेकिन हर्ट, हेफ्ट, ये जो मोटे मोटे सेक्शंस हैं, इनमें तो हमें थोड़ा जी होना मैडम चाहिए कि वो 320 की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीआरपीसी के जो शेड्यूल में आ रहे हैं उसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। जी मैडम कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑफेंसेस हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख सकते हैं। इट्स नॉट सो दैट दिस जी क्वेश्चन मैडम ओनली विल बी आस्क्ड इन योर मेन इंटरव्यू, बट मेजर जी जी ऑफेंसेस के बारे में हमें उनके कंटेंट और कौन कौन से उसके मेन पर्टिकुलर्स हैं जो हमें ध्यान रखते हैं कि ये ऑफेंस तब बनता है, मिसचीफ ये चीजें होंगी तब जी बनेगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये चीजें इंटरेस्टमेंट जरूरी है, जैसे इंटरेस्टमेंट वर्ड आपकी जब जी भी आप आंसर करोगे ट्रस्ट वाला तो ये वाला इंटरेस्टमेंट वर्ड होना चाहिए, ठीक है। जी मैडम ऐसे कुछ पॉइंटर्स होते हैं हर सेक्शन के यस कि आपको उसको हाईलाइट करके रख लीजिए। जी जी साक्षी मैम, यस मैडम अनुज जी, ओवरऑल आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, है ना, पोलाइट थैंक हम्बल यू है, मैडम वो सारी थैंक यू चीजें मैडम आप यस एक्सप्लेन भी अच्छा करें, जैसे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेते, लेकिन हम हर बार सेम आंसर नहीं दे सकते, है ना। तो जैसे जी आपने मैडम एसआरए चूज जी करा तो हमने तो चलो एसआरए से पूछ लिया, हो सकता है वो ये बोल के छोड़ दे आप इसमें तो आपको सभी आता होगा, तो हम नहीं, यस, इवन आई किसी वाज और स्विच कंप्लीट, करें, बिल्कुल सारे अच्छे से क्योंकि करना, या ओके तो मैडम बताना मत या बोलना बहुत अच्छे से। तो जी जैसे मैडम मैंने जी 6 में आपसे पूछा तो आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे डगमगा गए, खिलौना के जी बारे मैडम में जी है या नहीं है ना। तो ये जी चीजें ध्यान रखो, ओवरऑल अभी आपके पास 4 से 5 इंडेक्स को गो थ्रू हो जाओ बस, है ना। और ज्यादा यस डेप्थ में तो यस क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचा है, लेकिन आप गो थ्रू जल्दी जल्दी जी हो जाएंगे, इंडेक्स भी पढ़ेंगे तो ये सफिशिएंट होगा आपके लिए, ताकि आप जैसे मैम जी ने मैडम जो चीजें पूछी वो डेली रूटीन में कोर्ट में काम आने वाली चीज है, जब आप जाएंगे जी तो जी आपका आमना सामना इन्हीं चीजों से होगा। इसके जी अलावा मैडम आप जो एटीट्यूड अभी लेके बैठे हैं आप इसको मेंटेन करिए, विश यू ऑल द यस मैम वेरी बेस्ट, है ना अमृत जी। थैंक यू मैडम ऑल द बेस्ट अमृत जी। थैंक यू मैडम थैंक यू